Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to solve test number 2 from the English Bridge course. It's for standard 6th subject English and it's for English medium students. Okay, now let us see question number first. A oral test. तो देखो यहाँ पे ओरल टेस्ट है, पहले उसके ओरल के 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं और कितने मार्क्स के लिए हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स और जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो 3 मार्क्स के लिए, तो यह 9 मार्क्स के लिए ओरल टेस्ट है. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन फर्स्ट. डेवलप एंड प्रेजेंट ए मोनोलॉग ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स. यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए 3 टॉपिक्स हैं. फर्स्ट है कोविड-19, सेकंड टेक्नोलॉजी आणि थर्ड है रीडिंग. इन टॉपिक्स में से आपको जो पसंद है या कोई भी एक टॉपिक जो आपको इजी लगे वैसे टॉपिक पे आपको एक मोनोलॉग प्रेजेंट करना है, एक मोनोलॉग तैयार करना है. तो मैंने यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर एक मोनोलॉग तैयार करके बताया है. नाउ लेट अस आंसर. टेक्नोलॉजी. हेलो, माय नेम इज़, मैंने वहाँ पे डैश दे दिया, आपको आपका खुद का नाम वहाँ पे लिखना है. एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी. फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, this is an important topic because we use technology in almost every aspects of our daily life. Nowadays, we need the internet for almost everything. You can use it for applying for a job or even for paying taxes. But this new technology has also some disadvantages. Moreover, most people are wasting time by using internet. I think if we use the internet properly can be a very useful tool for making our lives much easier. Then I had like to speak about mobile phones. It is very useful in our day-to-day life. Because of it, we can communicate with our family and friends. We can use it for making phone calls as well as for listening music, playing games, taking photographs, online shopping, etc. But don't waste more time on mobile phone. We have to concentrate on our study. Thank you so much for listening to me. Question number second. Describe the picture on the cover page of your बाल भारती textbook in your own words. अभी यहाँ पे क्या दिया है, आपका जो इंग्लिश का बाल भारती टेक्स्ट बुक है तो उसका जो कवर पेज है उसके ऊपर आपको कुछ इंग्लिश में खुद के वर्ड्स में लिखना है. उसको, उस पिक्चर को, उस कवर पेज को आपको डिस्क्राइब करना है. 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन है. ओके, नाउ लेट अस सी आंसर. आंसर. अवर बाल भारती टेक्स्ट बुक्स कवर पेज इज वेरी नाइस. इट्स कलर इज ग्रीन एंड ब्राउन. वेरी स्मॉल डिजाइन इज ऑन इट. अपसाइड इट्स कलर इज ब्राउन विथ येलो स्ट्रिप्स and downside green. There is our standard name in yellow color. On left and right hand side it is same, but in middle of the page a rectangle shape is there. In that rectangle a branch of a tree and on it a pigeon's picture is there. It has green color and its head is grey with white beak. We can see some red color fruits on that branch where the pigeon is sitting nicely. Upside of the page, name is given English and Bal Bharti. In that rectangle shape, one more rectangle is there. There is a picture of a girl and boy who are reading a book under a book tree. There is a name in Marathi, Bal Bharti Suvarna Mahotsav. Question number 3. Describe the mall supermarket you visited recently. आपने एक मॉल वगैरह नहीं तो सुपर मार्केट को विजिट किया होगा तो उसका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे लिखना है. ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए. नाउ लेट अस सी आंसर. आंसर. लास्ट संडे माय फादर टुक अस टू द ईस्ट दिल्ली शॉपिंग मॉल. इट इज़ अ ह्यूज 4-storied बिल्डिंग. इट इज़ फुली एयर कंडीशनड विथ गुड सिक्योरिटी. देयर वेर हंड्रेड्स ऑफ शॉप्स ऑफ ऑल काइंड्स. वी विजिटेड सम ऑफ देम. There were many more sections with all sort of things. I especially loved the toys and video games section. We bought many toys and games. Then we had some pizzas and burgers at the food bazaar and came back home. Question number 4. Prepare and present a short speech on one of the following. तो यहाँ पे आपको क्या करना है,
टॉपिक्स कौन कौन से दिए, जैसे बॉडी लैंग्वेज है, वॉइस है, मैनरिज्म है, इनके ऊपर एक छोटा सा स्पीच तैयार करना है. ओके, वॉइस. Dear friends, my today's topic is voice. Voice is an important thing when we are delivering the speech. Right voice makes our content interesting for the listeners. In public speaking, our voice is a big part of our persona. We must be very conscious of our voice. Then only we can reach up to listeners' mind. Our voice affects on listeners' mind, and then only they accept us and our message. So voice plays an important role in our speech. Now B, written test. Question first है उसमें, choose the correct alternative and write. How many participants are there in a monologue? मोनोलॉग में कितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं? मोनोलॉग में एक ही पार्टिसिपेंट होता है, इसलिए 1 उसका आंसर आएगा. और बी, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ अ स्किट? स्किट का प्राइमरी पर्पज़ क्या है? तो उसका प्राइमरी पर्पज़ है लर्न, कुछ ना कुछ सीखना. तो इस तरह से उसका आंसर आएगा लर्न. ओके. क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग. यहाँ पे देखो, फर्स्ट कॉलम में दिया है, कॉलम ए में आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस एंड मैनरिज्म. और कॉलम बी में दिया है कुछ सेंटेंसेस दिए वहाँ पे, और हमें क्या करना है, मैच करना है. अभी मैच द फॉलोइंग बोला है, तो हम कैसे मैच करेंगे? जैसे आई कॉन्टैक्ट है, तो आई कॉन्टैक्ट के बारे में जहाँ पे हमें बी कॉलम में मिलेगा तो वो वहाँ पे हम पेयर लगाएंगे. नाउ लेट अस सी आंसर. तो फर्स्ट का आंसर है डी, प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट मेक्स पीपल फील वेलकम एंड कंफर्टेबल. ओके. सेकंड है बॉडी लैंग्वेज. सेकंड का आंसर है सी, using your body effectively for communication. This includes hand movements, facial gestures, etc. 3, voice. Voice का 3 का आंसर है A, how an audience hears our voice affects how they regard and accept us and our message. And last है mannerism, 4th, और उसका आंसर है B, nervous expressions. A speaker might not be aware of, such as putting their hands in their pockets, nodding their head excessively, or using filler words like and too often. Okay. क्वेश्चन नंबर 3 है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मालूम है, अल्फ़ाबेट्स जैसे आते हैं सिक्वेंसली, ए के बाद बी, बी के बाद सी, वैसे यहाँ पे भी हमें क्या देखना है, पहले हमने ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड लिया है, उसके बाद एच से, क्योंकि ए के बाद कुछ लेटर्स छोड़ने के बाद एच पहले आता है, और उसके बाद एच के बाद कुछ लेटर्स छोड़ने के बाद के आता है. तो इस तरह से मैंने उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिया है. तो आंसर देखते हैं, अरवली, हिमालया, कराकोरम एंड सह्याद्री. आपने इस तरह से ही उसको लिखना है. क्वेश्चन नंबर 4, यूज अ गुड डिक्शनरी एंड डू द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस. आपको यहाँ पे क्या करना है, एक अच्छी सी डिक्शनरी लेना है, और जो जो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए तो उनके आंसर लिखना है. फर्स्ट है ए है, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ कॉन्टेजियस. कॉन्टेजियस का मीनिंग क्या है? तो देखो मैंने वहाँ पे ए लिख के आंसर दिया है आपको नीचे. अबाउट अ डिसीज दैट यू कैन गेट बाय टचिंग समथिंग और समवन. आफ्टर दैट बी, फाइंड आउट सिनोनिम्स फॉर सन. सन का सिनोनिम हमें यहाँ पे बताना है. तो सन के बहुत सारे सिनोनिम है, जैसे डे लाइट है, सनलाइट, स्टार. यहाँ पे मैंने 2 आंसर्स दिए, जैसे सन का सनलाइट, स्टार. ओके. और सी, फाइंड आउट एंटोनिम्स फॉर हेल्दी. हेल्दी का एंटोनिम हमें लिखना है. तो देखो आंसर, अनहेल्दी एंड सिक. क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड राइट अ पैराग्राफ. ये डायग्राम है, उसको ऑब्जर्व करो और उसके बारे में एक पैराग्राफ हमें लिखना है. अभी यहाँ पे क्या दिया है, करेंसी दिया है, इंडियन करेंसी, कैश मनी, कॉइन्स एंड नोट्स. 50 पैसे कॉइन, 1 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन एंड 10 रुपी कॉइन. इस तरह से हमें कॉइन दिए हैं. अभी 50 पैसे कॉइन हमें देखने को तो मिलेंगे, लेकिन हम उसको अभी यूज़ नहीं करते. ओके. उसी तरह से नोट्स है, जैसे देखो 5 रुपी नोट, 10 रुपी नोट, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपी नोट, 200 रुपी नोट, 500 रुपीज़ एंड 2000 रुपी नोट.
तो इनके ऊपर हमें एक पैराग्राफ तैयार करना है. नाउ लेट अस से आंसर. This diagram is about the currency in India. It's cash money. There are coins and notes as our currency. In coins, there are 50 paise, 1 rupee, 5 rupee and 10 rupee coins. And in notes, there are 5 rupee, 10 rupees, 20 rupees, 50 rupees, 100 rupee, 200 rupee note, 500 rupees note and 2000 rupee notes are available. We use coins and notes as our currency in India. Okay. डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो. उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स भी. ओके, थैंक यू.